Hello, good morning class. This is my first lecture in your FY. Okay, we start our third unit, Morphology of Bacteria. Let's start with introduction. In our third unit, we include total 9 points. Let's start with first introduction. 3.1 is our introduction. In introduction, we study what is microorganism, how they look like and how they different shapes. In our second 3.2 bacterial structure. In bacterial structure, we study main three type of bacterial structure and how they arrange with each other. In our third point 3.3 structures external to the cell wall. How bacteria look like from external to the cell wall. Cell wall is our middle point. So from outside to the cell wall structure of bacteria we will study in our 3.3. Now fourth one is 3.4, the cell wall. How cell wall is look like and what is the role of cell wall in bacterial cell. In 3.5, the structures internal to the cell wall. From cell wall to the inside, that means what is the inside of bacterial cell, what is there are a different type of organisms present in bacterial cell. So we will discuss about the organisms present in our bacterial cell. Now the second 3.6 cytoplasmic inclusion and vacuoles. Actually what is the bacterial have inside the body, what is cytoplasmic vacuoles and what is inclusion. Inclusion, that means any other particle enter the bacterial cell engulf it and digest in their body. And vacuoles, there are so many different type of vacuoles that help the bacteria to survive. And next one is nuclear material. What is the nuclear material in bacteria? We all know the bacteria have a nuclear material as DNA. If we discuss about the virus, then virus have a RNA as a nuclear material. But we have to discuss in bacteria. That means we are discussing about DNA, not in RNA. Next one is spore and cyst. These two things is bacteria use as a protection. Bacteria for the protection. Cyst is outer layer that protects the bacteria from any extreme conditions such like temperature, high pH, high pressure. And the last one is bacterial cyst. Bacterial cyst or spore, both are same function but they have both different structures. So this is all about the topic of, all about the introduction of our unit morphology of bacteria. Now let's start with the first introduction. What is the introduction? Now we discuss about morphology. So what is morphology? The branch of biological science that deal with the study of structures and form of living organism. तो मॉर्फोलॉजी क्या होती है? तो मॉर्फोलॉजी में हम बैक्टीरियल का स्ट्रक्चर, उसके स्ट्रक्चर कैसा है और वो कैसे अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं, अपनी लाइफ कैसे जीते हैं, वो सब हम इसमें स्टडी करते हैं. Observe under the microscope. When we observe microscope in our ordinary microscope, what is the meaning of ordinary microscope? The ordinary microscope is microscope we use in our लैब. जो हम लैब में रूटीन में यूज़ करते हैं वो हमारे ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप होते हैं. अगर हम बैक्टीरिया को ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एकदम सिंपल होता है. हम उसका स्ट्रक्चर डिटेल में स्टडी नहीं कर सकते. तो जब हम उसे ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर हमें सिंपल दिखाई देता है. लेकिन जब हम उसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तब उसका स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स है वो हम देख सकते हैं. एक्चुअल में जो हमारा ह्यूमन सेल होता है उसके अंदर जब
जो भी ऑर्गेनिल्स होती है उसका जो भी फंक्शन होता है, सेम थिंग्स अप्लाई ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी डिफरेंट टाइप ऑर्गेनिल्स होती है और उसका अलग अलग फंक्शन होता है, जिसकी हेल्प से जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना वर्क, अपना फंक्शन कर सकता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर वेरी एक्टिव इन इम्पोर्टेंस। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी साइज एकदम छोटी सी है, लेकिन वो हाईली एक्टिव है और प्लस वो हमारी लाइफस्टाइल में हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पे यूज़ होते हैं? तो हमें कोई भी फर्मेंटेटेड प्रोडक्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल कर्ड। वो कर्ड है वो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से मिलते हैं। कोई भी एंटीबायोटिक हमें बनानी है तो एंटीबायोटिक के लिए भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ज़रूरत पड़ेगी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारी डेली लाइफ में भी हमें यूज़ होते हैं। इवन हमारी बॉडी में भी कई तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमें सर्वाइव करने के लिए ज़रूरी होते हैं। बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हम सर्वाइव नहीं हो सकते। हमारी बॉडी में जो प्रोबायोटिक्स होते हैं वो एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही होते हैं जो हमारी बॉडी में दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरे बैक्टीरिया है जो हमारे लिए पैथोजन है, उसको हमारी बॉडी में अंदर आने से प्रिवेंट करते हैं। इसलिए जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस होते हैं। सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इम्पोर्टेंस नहीं होते, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म है जो हमें हेल्पफुल भी होते हैं, जिसकी मदद से हम डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट जनरेट कर सकते हैं। प्लस हमें एंटीबायोटिक बनानी है तो भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से बना सकते हैं। दे कैन सर्वाइव एक्सट्रीम्स कंडीशन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं, लेकिन पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्सट्रीम कंडीशन? जो नॉर्मल कंडीशन होती है उससे थोड़ी ज़्यादा अथवा तो उससे थोड़ी कम जो कंडीशन होती है उसे कहते हैं एक्सट्रीम्स कंडीशन। फॉर एग्जांपल, नॉर्मल टेम्परेचर अभी 45 या 37 के आसपास होता है। अभी जब विंटर है तो थोड़ा सा कम होगा। जो नॉर्मल टेम्परेचर है वहाँ पे तो सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव हो सकते हैं, लेकिन जो थोड़े हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हाईली एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी सर्वाइव हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 17 है, 100 है, वहाँ पे भी कहीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इतने हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव हो सकते हैं। जो थोड़े हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एकदम लो टेम्परेचर में भी सर्वाइव हो सकते हैं। 0 ले लो या -20, -40, वहाँ पे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सर्वाइव रह सकते हैं। हमने एक एग्जांपल देखा टेम्परेचर का, वैसे ही पीएच ले लो, हाई पीएच है या लो पीएच है, कहीं पे भी प्रेशर ले लो, हाई प्रेशर या लो प्रेशर, ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव नहीं हो सकते। पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही सर्वाइव हो सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे सर्वाइव हो सकते हैं। अमुक पर्टिकुलर स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे सर्वाइव हो सकते हैं। दे आर यूबिक्विटस एंड हाईली एडेप्टेबल। डेट मीन्स यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है? जो एनीवेयर, हर जगह पे प्रेजेंट हो, एंड हाईली एडेप्टेबल। हाईली एडेप्टेबल डेट मीन्स वो ऑर्गेनिज्म डेट कैन adaptable any condition, any environment for survival. Now let's start bacterial morphology. तो बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी है, उसमें हम क्या इंक्लूड करेंगे? तो कि बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी में उसकी साइज, उसका शेप और उसका स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट, ये 3 चीज़ें मेनली इंक्लूड होती है। हम अभी बात कर रहे थे उसकी साइज़ की, तो हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी साइज़ बहुत ही स्मॉल होती है, हम उसे नेकेड आइज देख सकते हैं नहीं है। हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। अगर हमें उसका स्ट्रक्चर डिटेल में स्टडी करना है तो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी में मेनली बैक्टीरियल साइटोलॉजी एंड बैक्टीरियल एनाटॉमी को डिस्कस किया जाता है। माइक्रोबियल साइटोलॉजी डेट मीन्स इन साइटोलॉजी एनी पर्टिकुलर सेल, इंडिविजुअल सेल की स्टडी की जाती है। इन बैक्टीरियल एनाटॉमी, एनाटॉमी में इंडिविजुअल
ऑर्गन्स अथवा तो इंडिविजुअल टिश्यू की स्टडी की जाती है। ये दोनों अलग अलग है। साइटोलॉजी है, हमें पर्टिकुलर सेल की स्टडी की जाएगी, और बैक्टीरियल एनाटॉमी है, उसमें एनाटॉमी में पर्टिकुलर ऑर्गन्स से पर्टिकुलर ऑर्गन या पर्टिकुलर टिश्यू उसकी स्टडी की जाएगी। तो फर्स्ट वन है साइज। तो साइज में हम देखेंगे वेरी स्मॉल साइज अबाउट 0.5 टू 1.0 माइक्रोन। बैक्टीरियल साइज है वो एकदम स्मॉल है, 0.5 से लेके 1 माइक्रोन तक ही उसकी साइज होती है, उससे बड़े माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होते। सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो ऑफ बैक्टीरिया इज वेरी हाई। बैक्टीरिया का जो सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो है वो हाई होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि उससे जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो इजीली हो सकती है, उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। उसकी वजह से ऑर्गेनिज्म है वो अपना फूड इजीली इंगल्फ कर सकते हैं, उसको फूड को प्लस उसे अपनी बॉडी में फूड को सप्लीमेंट्री के लिए कोई एक्स्ट्रा सिस्टम की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि उसकी साइज स्मॉल है। तो इसकी वजह से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी बॉडी में वो एकदम क्लोज होते हैं, उसको सप्लीमेंट्री बॉडी के अलग अलग पार्ट में उसे पहुंचाने की ज़रूरत होती नहीं है। तो इसकी जो साइज स्मॉल है उसका एक एडवांटेज है। न्यूट्रिशनल को अलग अलग जगह पे पहुंचाने के लिए उसके सिस्टम ज़रूरत नहीं होती है। प्लस सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो हाई है, डेट मीन्स उसका सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि उसका जो फूड इजीली उसके नियर एटमॉस्फेयर अथवा तो उसके सराउंडिंग से इजीली इंगल्फ कर सकते हैं, उसको फूड के लिए फाइट नहीं करना पड़ता है। बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज बैक्टीरिया आर एबल टू मल्टीप्लाई वेरी रैपिडली। उसकी साइज स्मॉल है, इसकी वजह से उसका जब मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन डेट मीन्स 1 में से 2, 2 में से 4, उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो रैपिडली होता है। अप्रोक्स फॉर एग्जांपल हम ले ले इकोलाई। इकोलाई का मल्टीप्लिकेशन टाइम अप्रोक्स 24 मिनट है। जब हमारा ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारा ह्यूमन बॉडी है उसका सेल को मल्टीप्लाई होने में अप्रोक्स 12 टू 24 आवर्स लगते हैं। जब इकोलाई की साइज स्मॉल होती है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बॉडी सेल, तो उसकी वजह से वो फटाफट मल्टीप्लाई हो जाता है। अप्रोक्स 20 या 24 मिनट में उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो इसकी जो साइज स्मॉल है उसका एक सेकंड एडवांस है कि वो मल्टीप्लाई इजीली हो जाता है। सेकंड है सेप। सेप ऑफ बैक्टीरिया इज डिसाइडेड बाय इट्स रिजिड सेल वॉल। बैक्टीरिया का सभी बैक्टीरिया का सेप सेम होता नहीं है। उसका सेप किस पे डिपेंड करता है कि उसकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा है, उस पर उसका सेप डिपेंड करता है। बैक्टीरिया मेनली 3 सेप है जो हमें दिखाई पड़ता है। फर्स्ट वन है स्पेरिकल सेप, सेकंड है स्ट्रेट रोड एंड थर्ड वन इज स्पाइरल। ये 3 मेन सेप है जो हमें बैक्टीरिया के अलग अलग सेप में दिखाई पड़ते हैं। इसके बावजूद भी बीजे दूसरे कहीं सेप हैं जो हमें दिखाई देने पड़ते हैं, लेकिन ये 3 मेन है। इसमें फर्स्ट वन है स्पेरिकल सेप। जो स्पेरिकल शेप के बैक्टीरिया होते हैं उसे हम कोकस कहते हैं। डेट मीन्स वो राउंड शेप के होते हैं। जो सिंगल ऑर्गेनिज्म है तो हम उसे कोकस कहते हैं, और सिंगल की जगह डबल और मल्टीपल है तो हमें उसे कोकाई कहते हैं। तो जो कोकस होते हैं वो सिंगल ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो राउंड शेप के होते हैं अगर वो सिंगल है डेट मीन्स कोकस, अगर वो डबल में है तो उसे हम कोकाई कहते हैं, तभी हम कोकस यूज़ करेंगे नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग अरेंजमेंट है ऑर्गेनिज्म की। ऑर्गेनिज्म ऑलवेज हमें सिंगल फॉर्म में नहीं मिलते।
वो कभी डबल फॉर्म में, कभी बंच में, कभी चेन में भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंगल ऑर्गेनिज्म में हमें उसे क्या कहते हैं, कोकस कहते हैं। यहाँ पे 2 पेयर में है, 1 और 2, that means this is diplococci. Now it is not a coccus, right? सिंगल ऑर्गेनिज्म है तभी हम उसे कोकस कहेंगे, वो ये पैर में है तो हम उसे कोकाई कहेंगे। यहाँ पे 2 की पैर में है इसलिए हम इसे डिप्लोकोकाई कहेंगे। यहाँ पे जो है वो डिप्लोकोकाई अनकैप्सुलेटेड, दैट मीन्स जो ऑर्गेनिज्म जिसके आसपास कैप्सूल होती है, कैप्सूल का काम क्या होता है, जो कैप्सूल होती है वो ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करती है इंगल्फ होने से। इंगल्फ का मतलब क्या होता है, हम किसी ऑर्गेनिज्म को उसके, यदि कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को उसके अंदर इंक्लूड कर लेता है तो हम उसे बोलेंगे इंगल्फ कर लेना। तो जो कैप्सूल होती है वो कैप्सूल ऑर्गेनिज्म को इंगल्फ होने से प्रोटेक्ट करती है, फिर और उसे कोई भी सरफेस पे अटैचमेंट होने में भी हेल्प करती है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है वो कैप्सुलेटेड है। यहाँ पे है स्टेफाइलोकोकस, सॉरी स्टेफाइलोकोकाई। स्टेफाइलोकोकाई ऑर्गेनिज्म सिंगल फॉर्म में है तो हम उसे कोकस कहेंगे, अगर वो 2 की पैर में है तो वो क्या हो जाएगा, डिप्लोकोकाई। यदि वो बंच में है तो हम उसे बोलेंगे स्टेफाइलोकोकाई। यदि वो 4 की पैर में है तो वो क्या हो जाएगा, टेट्राड। 8 की पैर में है तो सार्सिना, एंड यदि वो चेन में है तो वो क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकाई। स्ट्रेप्टोकोकाई और स्टेफाइलोकोकाई both are different. In staphylococcal organism arrange in a bunch, while in streptococci organism arrange in a chain form. Remember these 2 things. तो ये हमने डिस्कस किया। फर्स्ट हमारा जो शेप था second form of shape is bacillus. If organism in single form then we call it bacillus. If in double form is called bacilli. If you see the figure here, the shape if you can see the shape, this is not proper coccus or not proper bacillus, that means it is cocobacillus, and this is proper bacillus shape. We call also called rod shape organism, that means straight rod. This one is cocobacillus, this one is bacillus single form, that means bacillus. If it is in double form, 2 pair of bacillus organism, then is called diplobacilli. Now we cannot call bacillus. Single form bacillus, double form bacilli. If organism in chain form, that is called streptobacilli. Now third form is curve-shaped rod. Third one is helically curved shape rod. It is also called spiral shape. यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे विब्रियो है वो हम उसे स्पाइरल ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं, जिसका शेप
स्पाइरल की तरह होता है। यहाँ पे काफ़ी और भी शेप दिखने को मिलते हैं जो हमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म में दिखाई पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पाइरोकेट। स्पाइरोकेट का शेप कैसा है? तो ना तो ये रोड शेप की तरह है, ना तो बेसिलाई की तरह है। इसका शेप टोटली डिफरेंट है, जिसे हम कहते हैं स्पाइरल शेप। इसलिए इस ऑर्गेनिज्म को हम स्पाइरोकेट कहते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं फिलामेंटस। हम यहाँ आगे स्टडी करेंगे कि ऑर्गेनिज्म को एक अलग ही ऑर्गन होता है जिसे हम कहते हैं फिलामेंटस, जो उसको लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा इसके सिवा काफ़ी सारे डिफरेंट शेप होते हैं ऑर्गेनिज्म के। Now we discuss bacterial structure. Numbers structure are found in prokaryotic cell. prokaryotic cell है, उसके अंदर अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर है दिखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें से सारे स्ट्रक्चर सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई ऑर्गेनिज्म में कैप्सूल होती है, बाकी ऑर्गेनिज्म में कैप्सूल नहीं होती है। कुछ ऑर्गेनिज्म है वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, डेट मीन्स उसमें फ्लैजिला होता है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी है बैक्टीरिया जिसके अंदर फ्लैजिला नहीं होते। तो यह 3 टाइप के स्ट्रक्चर है जो कॉमन है, हमें कई ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट वन है स्ट्रक्चर एक्सटर्नल टू द सेल वॉल। सेल वॉल की बाहर की साइड में उसकी आउटर सरफेस है, वहाँ पे पर्टिकुलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है। हम उसका एग्जांपल ले ले तो फ्लैजिला। जो फ्लैजिला होता है वो सेल वॉल की बाहर की साइड होता है, यानी कि जो बैक्टीरियल सेल है उसकी आउटर सरफेस में होता है। जो फ्लैजिला है उसका फंक्शन क्या होता है? बैक्टीरियल सेल को मोटिलिटी, बैक्टीरियल सेल को मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करना है तो वो फ्लैजिला की हेल्प से कर सकते हैं। फ्लैजिला के अलावा कहीं और भी ऑर्गन्स है जो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया को मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। जो सेकंड है वो सेल वॉल है। सेल वॉल है, कहीं ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल है उसको पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को शेप देती है। उसकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर कैसा है उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिज्म है उसका शेप डिसाइड होगा। स्ट्रक्चर इंटरनल टू सेल वॉल। सेल वॉल की अंदर की साइड में यानी कि बैक्टीरियल का इनसाइड है, उसकी अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिल्स है वो प्रेजेंट होते हैं, उसका भी हम स्टडी करेंगे। मैनी बैक्टीरिया कंटेन कैप्सूल beneath the capsule lies the cell wall. It gives the shape to the cell wall. हमने अभी डिस्कस किया कि ऐसा पर्टिकुलर टाइप ऑर्गेनिज्म है जिसे हम कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। वो कैप्सुलेटेड ऑर्गेनिज्म है, उसकी आउटर सरफेस पे पर्टिकुलर लेयर होता है जो थोड़ा स्टिकी होता है। उसकी मदद से क्या होता है कि उस ऑर्गेनिज्म को किसी भी सरफेस पे अटैच होना होता है तो इजीली कैप्सूल की मदद से अटैच हो सकता है। कैप्सूल की अंदर की साइड की, कैप्सूल के नीचे में सेल वॉल आती है जो ऑर्गेनिज्म को शेप फिक्स करने में हेल्प करती है। इसके अलावा सम ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके पास फ्लैजिला होता है। फ्लैजिला का काम क्या होता है? मूवमेंट करना। इनसाइड द सेल वॉल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब सेल वॉल की इनसाइड, सेल वॉल की नीचे क्या होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की साइड से फोल्डेड होगी तो उसे हम क्या बोलेंगे? मेसोजोम। न्यूक्लियोइड इज फोल्डेड डीएनए विथआउट न्यूक्लियर एनवेलप। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्रोकैरियोट का मीनिंग क्या होता है? जो ओल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उसे हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, जो पहले बैक्टीरिया थे, राइट। उसका जो बॉडी है, उसका सेल है, वो इतना डेवलप्ड नहीं हुआ था एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसका जो न्यूक्लियोइड होता है
उसके बाहर न्यूक्लियोइड इन्वेलोप नहीं होता है, वो उसमें डेवलप नहीं हुआ होता है। तो न्यूक्लियोइड होता है, उसके अंदर क्या होगा, डीएनए होगा जो पूरे सेल का हैंडल करेगा। पूरे सेल में कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स होगी, उसका फंक्शन क्या होगा, वो सब कोड कौन करेगा, डीएनए करेगा। Ribosome are internal membrane system and storage granules are found scattered in the cytoplasmic matrix। राइबोसोम होता है ऑर्गेनिज्म की इनसाइड, और राइबोसोम का क्या फंक्शन होगा, तो कि जब भी आरएनए होता है उसको ट्रांसक्राइब करना होता है, उसका ट्रांसक्रिप्शन करना होता है, तो वो राइबोसोम में होता है। राइबोसोम जस्ट लाइक ग्रेन्यूल्स, वो ग्रेन्यूल्स की तरह ही दिखते हैं, जो सेल की साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है उसमें कहीं जगहों पे प्रेजेंट होगा। उसके अलावा ग्रेन्यूल्स होगी। ग्रेन्यूल्स कौन से ग्रेन्यूल्स, स्टोरेज ग्रेन्यूल्स। कभी बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा फूड आ जाता है तो वो क्या करते हैं, उसे स्टोर कर देते हैं। जब भी उसके पास फूड नहीं होता तो वो स्टोरेज फूड का ऐसा फूड उसका यूज़ करते हैं। तो स्टोरेज ग्रेन्यूल है वो भी ऑर्गेनिज्म के इनसाइड प्रेजेंट होती है, जो उसे डोरमेंट कंडीशन में उसमें से फूड में हेल्प करेगी। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसका स्ट्रक्चर है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल बाहर की साइड यहाँ पे हम देखेंगे कि फ्लैजिलम है। फ्लैजिलम का वर्क क्या होता है, ऑर्गेनिज्म को मूवमेंट देना, वो बाहर की साइड होता है। उसके अंदर क्या आ जाएगा, सेल वॉल, जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो सेल वॉल है। सेल वॉल की अंदर होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड फोल्डेड हुई है, दैट मीन्स वो बन जाएगा मेसोजोम। यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन है, यहाँ पे इंक्लूजन बॉडी है। कभी ऑर्गेनिज्म के सरफेस पे कोई पार्टिकल आके अटैच होता है तो ऑर्गेनिज्म उसको अंदर की तरफ इंगल्फ कर लेता है और उसकी ऐसी वैक्यूल्स बना देता है। फिर उसको डाइजेस्ट करके जो भी वेस्ट है वो बाहर निकाल देगा और जो भी फूड उसमें से मिलेगा उसको यूज़ कर लेगा। यहाँ पे है प्लाज्मिड, यहाँ पे है पिलाई। पिलाई का वर्क भी सेम फ्लैजिलम जैसा ही होता है। पिलाई उसको दूसरी कोई भी सरफेस है उसके साथ अटैच होने में हेल्प करती है। यहाँ पे है न्यूक्लियोइड, यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूक्लियोइड एनवेलोप यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, ओनली न्यूक्लियोइड है जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है। यहाँ पे जो ग्रेन्यूल्स जैसा स्ट्रक्चर दिखता है वो क्या है, राइबोसोम, और यहाँ पे है एंडोस्पोर। तो ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर है कि उसके अंदर कौन कौन सी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती है, उसका वर्क क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका आउटर जो भी यहाँ पे है फ्लैजिलम है, यहाँ पे पिलियाई है, वो सबका स्ट्रक्चर देखेंगे। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका फंक्शन कैसा होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लैजिलम के बारे में डिस्कस करेंगे। I hope this lecture is helpful for you. Thank you so much.